بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج سوچتی ہوں زندگی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ میں نے اپنا سارا بچپن اپنے ماں باپ کو حویلی کی غلامی کرتے دیکھا، لیکن کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں اس حویلی کی مالکن بنوں گی۔ ابا چودھری صاحب کے ملازم تھے۔ ایک روز گھوڑے کی مالش کرتے ہوئے اچانک اس کی لات ابا کو لگی۔ وہ تکلیف سے دوہرے ہو گئے اور اسپتال جاتے ہی دم توڑ دیا۔ یہ بڑا سانحہ تھا ہمارے لیے، ہم غریبوں کی تو کل کائنات ہی ابا تھے۔ کیا بتاؤں کتنا دکھ ہوا تھا مجھے۔ اس وقت دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی مر جاؤں، لیکن جینا مرنا کب اپنے ہاتھ میں تھا۔ ہماری زمین تھی اور نہ جمع پونجی، نہ ابا کی ملازمت سرکاری تھی کہ پینشن کا آسرا ہوتا۔ مکان بھی چودھری صاحب کا دیا ہوا تھا جس میں سر چھپائے ہوئے تھے۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ ہم ماں بیٹی ذمہ دار کی حویلی میں چلے جائیں اور ان کی ملازمت کر کے روٹی کھائیں۔ لہٰذا ہم چودھری کی حویلی میں چلے آئے۔ ماں ان کے گھر کا کام کرتی اور میں کمرے میں بیٹھ کر کڑھائی کرتی۔ جن دنوں ابا کا انتقال ہوا میری عمر 14 برس تھی۔ مالکن بہت سے ایسے کپڑے مجھے دے دیتی جو نئے اور قیمتی ہوتے، لیکن فیشن سے پرانے قرار پاتے۔ میں ان کی قطر بیونت کر کے اپنے ناپ کے سی لیتی۔ یہ لباس مجھ پر بہت جچتے تھے۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ماں کی جگہ کچن میں پہنچی کیونکہ آج خصوصی کھانے بنانے تھے۔ چودھری صاحب کا بیٹا راہیل بیرون ملک سے آ رہا تھا۔ مالکن نے بیٹے کا کمرہ کھول دیا اور مجھے کام سمجھا دیا۔ میں نے تندہی سے صفائی کی اور ہر کام ویسے ہی کیا جیسے مالکن نے سمجھایا تھا۔ آج ان کے کچھ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے، لیکن میں ان کے سامنے نہ گئی بلکہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ دوسری ملازمہ لڑکی نے کھانا لگایا اور خالی برتن لا کر کچن میں رکھے جو اب مجھے ہی دھونے تھے۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان کچن میں آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چونک گیا کہ جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے دیا اور میرے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کی۔ میں بہت خوش تھی۔ کام ختم کر کے اماں کے پاس آئی، ان کو بتایا کہ راہیل نے مجھے 100 روپے انعام دیے ہیں۔ ماں بولی، خیال کرنا کہیں اس بات پر مالکن ناراض نہ ہو جائے۔ بچپن میں راہیل بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، پھر کوئی شرارت نہ کرے۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ راہیل پانی پینے کے بہانے آ گیا۔ مجھ سے باتیں کرنا چاہیں تو میں نے کہا، آپ ادھر زیادہ دیر مت بات کریں، اماں خفا ہوں گی۔ تم ان کی پرواہ مت کرو، مجھے تمہاری مرضی چاہیے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی انہونی بات اس نے کہتی تھی کہ میں نے دم سادھ لیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر مالکن نے سن لیا تو کھڑے کھڑے ہم کو گھر سے نکال دیں گی۔ اماں نے کہا تھا کہ یہ لڑکا بچپن میں شرارتی ہوا کرتا تھا، تو کیا یہ ابھی تک شرارتی ہے جو ایسی بات کر رہا ہے؟ ملازمہ تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، کون مالک برداشت کرتا ہے کہ اس کو سر پر رکھ لیا جائے؟ راہیل کی بات سے میں اتنا خوف زدہ ہوئی کہ اگلے دن کام پر نہ گئی اور بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ ماں سے کہا، اماں تم جاؤ، اب میں وہاں کام پر نہیں جاؤں گی۔ وہ بولی، راہیل کے آنے سے مہمان زیادہ آنے لگے ہیں، اس لیے کام زیادہ ہوتا ہے، میں اکیلے کام نہیں کر سکتی، تم میرا ہاتھ تو بٹانا ہی ہوگا۔ اماں آج تو چلی جاؤ، میری طبیعت تو ٹھیک ہونے دو، 2-4 دن اکیلے کام کر لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ اوپر کے کام والی دوسری لڑکی بھی تو ہے، وہ کروا لے گی تمہارے ساتھ کام۔ جب میں 3-4 دن حویلی نہ گئی تو راہیل سے رہا نہ گیا۔ ایک روز جب اماں ان کے کچن میں کام کر رہی تھیں تو وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایک امیر زادہ جو بیرون ملک سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، ایک معمولی ملازمہ کی بیٹی کی خاطر اس قدر پریشان ہو جائے گا۔ میں راہیل کو سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے آتے ہی سوال کیا، کیوں نہیں آئی تم آج؟ میری طبیعت خراب تھی، میں نے جواب دیا۔ تم نے بہانہ کیا ہے، تم میری بات کا جواب دینا نہیں چاہتے تھے، شاید تم مجھے پسند نہیں کرتے۔ راہیل صاحب خدا کے لیے مجھے شرمندہ نہ کریں، میرا خیال چھوڑ دیں، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں عزت سے یہاں رہنے دیں۔
मालकिन को इल्म हो गया तो हम गरीबों के लिए बहुत बुरा होगा। आप तो मजाक करके अलग हो जाएंगे, शामत हमारी आ जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा हूँ। मैंने दुनिया की सैर की है, ज़माना देखकर आ रहा हूँ, सोच समझ कर फैसला किया है। मेरी नज़र में अमीरी गरीबी का फ़र्क कुछ नहीं, तालीम का फ़र्क है। मैं तुमको तालीम दिलवाऊंगा। मैं सीरत को अहम समझता हूँ, दौलत को नहीं। मुझे लगा वो किसी दूसरी दुनिया से आया है और दूसरी दुनिया की ही बातें कर रहा है, या फिर मैं ख्वाब देख रही हूँ। मुझको गहरी सोच में डूबा देखकर वो बोला, तुम किसी और से मोहब्बत करती हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा, रहील साहब, खुदा के लिए ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए, बस मेरा ख्याल छोड़ दीजिए। मैं अब कभी आपके घर की तरफ नहीं आऊँगी। ठीक है, इसने चलते चलते कहा, तो फिर मैं भी घर से चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। चंद दिन गुजरे तो माँ ने मुझे कहा कि तुमको मालकन ने काम के लिए बुलाया है। अगले हफ्ते इनके बड़े बेटे नबील की शादी है। मैं ना जाना चाहती थी, लेकिन माँ के बार बार कहने और मजबूर करने पर मुझे जाना ही पड़ा। राहील ने मुझे देखा मगर बात न की। वो ज़्यादातर चुप रहता था और किसी से हंसकर बात ना करता था। इसके रवैये से मुझको एहसास हुआ कि वो वाकई संजीदा है। इसने मेरे साथ दिल लगी नहीं की, क्योंकि दिल लगी के तौर तवार और तरह के होते हैं। अगर किसी का दिल किसी पर आ जाए तो ये कुछ ऐसी अजब बात भी नहीं। बादशाह भी तो अपनी कनीज़ों से शादियां कर लेते थे, इसमें ऐसी क्या अनहोनी थी। जिस रोज़ नबील दुल्हा बना, मेहंदी वाला दिन था। मालकन ने मुझे बहुत अच्छा सूट दिया था जो मैंने इस मौका पर पहना हुआ था। सहन में सब लोग जमा थे। मैं किचन में कुछ लेने गई तो वहाँ रहील मौजूद था। वो रेफ्रिजरेटर से ठंडे पानी की बोतल निकाल रहा था। अचानक मैं इसके सामने आई तो वो मुझे बस देखता ही रह गया। शायद इसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ। सफ़ेद बुराक ने जोड़े में मुझको भी वो शहजादा लगा। सोचने लगी कि आखिर मैंने क्या जुर्म किया है जो इतना डर गई हूँ। तब मैंने फैसला कर लिया कि इसे अपने दिल की बात कह दूंगी और किसी से नहीं डरूंगी। मेरे चेहरे के तासरात से इसने मेरे दिल की बात जान ली। कहने लगा, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर मुझसे शादी मंजूर है तो हाँ कह दो, वरना मैं अगले हफ्ते इंग्लैंड रवाना हो जाऊंगा। फिर यहाँ कभी कोई मेरी सूरत ना देख सकेगा। इसकी इस धमकी ने मेरे दिल पर बिजली गिरा दी और हिम्मत करके मैंने कह दिया, आप अपने वालिदैन को राज़ी कर सकते हैं तो मुझे मंजूर है। वो खुश हो गया। कहने लगा, बड़े भाई की शादी के बाद मैं अपने बाबा जान से बात करूंगा। इसके बड़े भाई की शादी होगी। दुल्हन इनकी खाला की बेटी थी। वो जिम्मेदार घराने की बहुत खूबसूरत और नाजुक अंदाम लड़की थी। ये इनके हम पल्ला लोग थे। मैं शबाना को भाभी कहती थी। एक दिन भाभी की अम्मी के साथ एक औरत आई। ये इनके मैनेजर की बीवी थी जो इनकी अराजी के अमूर संभालता था। इसका बेटा शहर में नौकरी करता था। इस औरत ने भाभी से मेरे बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि खालू जान के पुराने मुंशी रहमत अली की बेटी है। इनकी वफात हो गई है। ये माँ बेटी अब हमारे पास रहती हैं। इस औरत ने मुझे पसंद कर लिया और अम्मा से मेरा रिश्ता मांगा। मेरी माँ तो खुश हो गई। वो जल्द अज जल्द मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। माँ ने वजह पूछी। मैंने बता दिया कि राहील मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर अम्मा के तो होश गुम हो गए। राहील और तेरा रिश्ता, ये कैसे हो सकता है? कहीं तो पागल तो नहीं हो गई? मैंने कहा, अम्मा अगर यकीन नहीं तो इसी से पूछ लो। अम्मा ने मौका पाकर राहील से बात की। इसने जवाब दिया कि यह सच है, मैं शादी आपकी बेटी रोशन से ही करूँगा, कहीं और इसका रिश्ता ना करना। मैं आजकल अपने वालिदैन से बात करूँगा और इनको मना लूँगा। राहील ने वालिदैन से बात की तो वालिद तो सोच विचार में पड़ गए, लेकिन मालकिन सख्त गुस्से में थी। वो मुझे मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी। तब मेरी माँ और मैंने कलाम पाक उठाकर इनको यकीन दिलाया कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप अपने बेटे से पूछ लें। मेरी खुशकिस्मती राहील ने अपने वालिद को कायल कर लिया और वो बेटे की खुशी पूरी करने पर राज़ी हो गए। मालकिन कुछ ना कर सकी, क्योंकि इस घर की रीत यही थी कि रिश्तों नातों में मर्दों की चलती थी। मालकिन ने बेटे को जाने क्या बुरा भला कहा कि वो घर छोड़कर चला गया। अब वो पछताई, तहाँ गुस्सा हम लोगों पर निकाला और क्वार्टर खाली करने को कहा। तब अम्मी ने अपना ट्रंक उठाया। इस वक्त चौधरी साहब घर पर ना थे। हम इनका घर छोड़कर करीबी गांव अम्मी के एक रिश्तेदार के घर आ गए। ये अम्मी के मामूजात का घर था।
इस वक्त उन्होंने हमारा आना खुशी से कबूल किया, लेकिन हमको पता था कि यह आर्जी ठिकाना ही है। उधर चौधरी साहब बेटे की तलाश में राहील के एक दोस्त के पास पहुंचे। बाप इसको मनाकर घर वापस ले आया और बीवी को समझाया कि बेटे की खुशी में रुकावट मत डालो। ये जवान लड़का है, एक बार बैरूने मुल्क निकल गया तो मुंह देखते रह जाओगे। हमारे कौन से ज्यादा फर्जंद हैं, 2 ही बेटे हैं। तुम लड़के की खुशी पूरी कर दो। रोशन एक वफादार और दयानतदार नेक शख्स की बेटी है, इसमें कोई ऐब नहीं है। गर्ज इस तरह उन्होंने बीवी को राजी किया। बेशक मालकन नीम दिली से राजी हुई कि इनकी निगाहों में मैं नुकरानी की बेटी थी। वो मेरे वालिद की शराफत और वफादारी को भुला बैठी थी। ताहम इसने ये शर्त रखी कि लड़की का निकाह इसके मेके में होगा और हम बाद में इसको जाकर ले आएंगे। सो मेरा निकाह मामू के घर हुआ। बाद में चंद बुजुर्गों और मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा चौधरी साहब मुझे अपने साथ हवेली ले आए, क्योंकि राहील को वो खोना ना चाहते थे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है कि मुझे इस बड़े घराने ने कबूल किया और मैं चौधरी साहब की बहू बनकर हवेली में उतरी। हवेली की औरतों का सलूक शुरू में मुझसे अच्छा ना था। मुंह से कुछ ना कहती थी, मगर दिल में इनके हकारत भरी हुई थी। इस सूरत हाल से मुझको दुख होता था। तब राहील कहते कि तुम इन पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैट्रिक कर लो तो मैं तुम्हें अपने साथ बरतानिया ले जाऊंगा। उन्होंने मेरे लिए टीचर का इंतज़ाम घर पर कर दिया था, लेकिन बाहर जाने की नौबत ना आई। मेरे ससुर बीमार पड़ गए तो मैंने एक बेटी की तरह इनकी खिदमत की। जब सास ने ये देखा तब इनका दिल नरम हुआ, क्योंकि इनकी कोई बेटी ना थी और आगे उन्होंने भी बुढ़ापा देखना था। मेरे ससुर साहब का इंतकाल हो गया। आधी जायदाद धन दौलत के वारिस राहील हो गए। उन्होंने अपनी अलग कोठी बनवा ली। मेरे 4 बच्चे हो गए। अब इन बच्चों की वजह से मैं सास की मोहब्बत में हकदार बनी। हम गर्मियों की छुट्टियां शहर से आकर इनके पास गांव में गुजारते। बेशक मेरी सास मुझसे प्यार न करती, लेकिन वो अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करती थी। जब तक वो जिंदा रही मैं इनके घर में डर डर कर कदम रखती थी, लेकिन जब वो शदीद बीमार हो गई तब उन्होंने मुझे कहा, बेटी अब तुम यहाँ मेरे पास रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वाकई इनको इन दिनों मेरी शदीद ज़रूरत थी। मैं इनका ख़ास ख्याल रखती थी, खिदमत करती। इनको फालिज हुआ तो मैंने दिन रात इनके लिए एक कर दिए। हर लम्हा इनकी खिदमत में हाजिर रहती थी। इनकी वफ़ात के बाद मुझे भी हवेली में इतना ही इस्तेहाक मिला जितना मेरी जिठानी को मिला था। मैं राहील को दाद देती हूँ जिन्होंने हिम्मत की, वरना मैं कहाँ हवेली की मालकन बनने के ख्वाब देख सकती थी। इंसान की कदर होनी चाहिए, रुपये पैसे की नहीं। राहील ने मुझे इज्जत दी और मैंने खूब इनके वालिदैन की खिदमत करके इनका दिल जीता। आज मेरे पास सब कुछ है। बस इस बात की ख्वाहिश है कि अल्लाह मेरी औलाद को भी कामयाब करे। राहील की तरह वो भी इंसान की कदर करना जाने, रुपये पैसे के चक्कर में फंस कर ज़िंदगी की रंगीनियों में उलझ ना जाएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको सुनने को मिलती रहे नई नई और दिलचस्प कहानियाँ।